Everyone, and a very warm welcome to today's session of Dil Ke Doubts. I am Neeraj Sharma, and I'll be your host for this evening. I would like to share a little about myself. I am an entrepreneur, a creative storyteller, and also a heart patient. After undergoing coronary artery bypass graft surgery, I made a conscious shift towards a healthier lifestyle, redefining my priorities around wellness, diet, and daily habits. And as a founder of two companies, one is Neologics and VGeno, I have led digital innovation in media and technology. But today, my focus is also on raising awareness about cholesterol and heart disease and the importance of early lifestyle interventions. My story is simply about one thing, and it is that taking charge of your heart health before it takes charge of you. And at HHIF, we believe that real conversations can make recovery less overwhelming. Dil Ke Doubts is our platform where patients, families, and caregivers can ask questions openly, and experts provide answers that matter to you. So, I would like to introduce Heart Health India Foundation for this session. So, Heart Health India Foundation is a patient led initiative that works to prevent and manage cardiovascular diseases. हम लोग डॉक्टर्स पेशेंट्स केयर गिवर्स और जो पेशेंट एडवोकेट्स है उनको साथ में जोड़ने का काम करते हैं टू बिल्ड अवेयरनेस प्रोवाइड एजुकेशन एंड शेयर प्रैक्टिकल इंसाइट्स अबाउट दिस डिजीज so, the Delicate Doubt series is one of our key efforts to ensure that patient voices are heard and expert advice reaches where it is needed the most. So, I would like to introduce our guest of honor today. It gives me great pleasure to introduce our expert for today, Dr. Snehil Goswami. Welcome, Dr. Snehil Goswami. Dr. Thank you. Thank you, Mr. Goswami Neeraj. Thanks a lot. Goswami is a consultant in adult cardiology at MMI Narayana Hospital, Raipur, with an MD in medicine and DNB in cardiology. Dr. Goswami has extensive experience in adult and interventional cardiology, and he has contributed to leading journals, including the Journal of American College of Cardiology, and authored a chapter in the CSI Cardiology book, year 2019, on the link between diet, inflammation, and cardiovascular disease. So, today he's going to help us understand how work related stress and mental health challenges directly affect the heart and how can we identify, manage, and prevent these risks. So, I would invite Dr. Snail Goswami to throw some insight on Dil Ke Doubt session and start with his presentation. And we are very delighted to have him here with us, and he's also here to answer our queries. So, Dr. Snail, you can take over from here. Thank you, Mr. Neeraj, for a very generous introduction. Without wasting any further time, why this topic was chosen for heart patients? I'll be communicating both in English, Hindi. Is it comfortable with the audience? I hope. If not, you can stop me in between and I can switch to English if there is any problem with the comprehension or if मेरे there is ख्याल any से language barrier. English is okay. I mean, Yeah, mixture of Hindi and English, you can sure. continue with both. Yeah. So, this topic I have chosen because we have been discussing and we've been focusing on the conventional risk factors for heart ailments like blood pressure, sugar, smoking, addictions, sedentary lifestyle. But there are certain things which are overlooked, and data highlights us the same. Now, what does the data tells that one fourth of the heart attacks occurring in India, that is 25% of the heart attacks occurring in India, occurs to the patient who don't have conventional risk factors. Neither they are hypertensive, neither they are diabetic. Still, they are suffering heart attacks. And these are the people, after suffering heart attack, they have this constant nagging inside their thought process: ki, why me? I was not doing anything wrong. So when these patients were studied, what it was found that yes, mental stress. Post COVID, we are seeing a lot of heart attack in young population. The person who are doing jobs, young people falling in gym, and all of us now, since social media is in the fashion, we are very familiar with such videos where you're seeing a healthy young man doing exercise and suddenly falling.
into the ground. So this mental stress or this mental fatigue is a very important aspect to be seen in the patients who have heart ailments, or someone who is in this constant fear that yes, there is these random thoughts that is going on, is pushing him or her towards this cardiac ailment. So about cardiac ailments, you have to understand that what mental stress does to us. Now, I'll just very briefly not going too much scientific, which will be very tough to discuss. I'll be very brief and very simple about how our brain works. There is a center in our brain which is called as amygdala or hippocampus. What these two centers do, there are multiple centers in our brain. There is a speech center, there is an auditory center, there is a center for smell. So is the centers for our thoughts, where these centers store our past experiences. Okay, so it is a two-way street. Yes, we do have bad past experience. We do have something which has, we have lost a near or dear one. Just for instance, for example, I'm giving, we had a very bad road traffic accident. We are the only survivor, and we lost our family. So this past experience will be stored in amygdala. Now it's a two-way street. Now does this two-way street mean? Two-way street means that we have a stress factor and our body is accordingly responding to it. Our body is learning how to get away with it. So normally, in normal individuals, this amygdala is inhibitory. The brain signals keep these things inhibited, no negative thoughts. But once these negative thoughts overtake us, or this stress overtake us, these amygdala center, which is normally inhibitory, becomes excitatory, and there is constant negative thoughts, constant fear. The patients that I deal with is someone suppose has a heart attack. The pain the patient suffers during heart attack, in medical term, it is called as sense of doom. What does sense of doom means? It is the pain which tells the patient कि यार मैं तो मरने वाला हूँ. 10 minutes में I'm going to lose my life. This is a scary experience. Now the patient reaches the hospital, treated successfully. Now he's going home. Okay. As soon as he goes home, जिस भी time पे उनको heart attack हुआ था, suppose he suffered a heart attack 4 a.m. in the morning. His brain will keep on, telling him every 4 a.m. in the morning, yeah, something's wrong with me. Okay, वापस वैसा ना हो. It takes time to heal. But this is something which I'll take a blame not only on the patients but also on the doctors. We tend to ignore. We look at those factors which are available on the reports, but we don't look at the mental health of the patient. We have to ask, a patient has to ask to himself whether he's sleeping well or he's having a guarded sleep. First thing, रात को सोने जा रहे हैं 10 बजे, waking up at 11 with a fear, अरे कुछ हुआ तो नहीं, whether I am breathing properly. Again waking up at 12, again waking up at 2. This disturbed sleep is the first sign that yes, you are stressed out. Second, when these patients go to workplace, due to our surrounding, heart attack is a big thing. Whenever you are in hospital, there will be hundreds of relatives coming to meet you, and they'll meet you as if they are meeting you for the last time, without realizing that they are putting a fear in your brain. Love is one aspect of it. Yes, they want to see you, but simultaneously, subconsciously, they are putting a fear. पता नहीं कल हम इनको देखेंगे कि नहीं. इनका, like you underwent a bypass. I'm pretty sure a lot of relatives might have come to see you. A lot of your friends might have come to see you, and the interaction should be positive instead of us, the country that we live in. We are emotional people, God fearing people. They will be praying for you and all those things. I constantly interview my patients, how was their experience during surgery, and they have this one constant story to tell me, that they had fear whether they'll wake up next morning or not, as if they're going for something very big. So these are the aspects which we have to take care. So that brings me to my second point, positive thinking. I said good sleep. Second, I said positive thinking. That you have to be positive about everything. Positive about that outcomes will be good. Positive about that
you're going to lead a normal life. Positive about that, you are going to have the life expectancy just like a normal man. Now, I'll throw some data or some light on this aspect about power of positivity. There, in medical science, there is a term called as stress cardiomyopathy or Takotsubo cardiomyopathy. What is this stress cardiomyopathy? A patient, uh, or this is also called as broken heart syndrome. Why broken heart syndrome? If some particular guy loses a near or dear one who's very close to him, he goes into depression, and the pumping capacity of his heart, what we call as ejection fraction, goes down automatically because of depression. This is all negative energy. This is all stress. Stress related hormones have taken over your body, and that has adversely affected your heart. Now, the heart, which is otherwise normal, just because of stress, has gone down. How to treat it? First, you have to get rid of that provoking factor. And this happens more commonly with patients who are admitted in critical care. Suppose they have some kidney infection, they have been admitted in ICU. As soon as they go to ICU, they see their surroundings, that the other patient is in ventilator, other patient is struggling, this patient is not surviving, and subconsciously they develop a negative thought that this is going to be my fate as well in some days. And that leads them into a depression and a condition called as stress cardiomyopathy. So, to go, no matter what procedure you are going, technology has advanced so much for cardiac treatment, also in our country in India, that now we are jumping leaps and bounds to, to save a patient. So this positivity, trust, trust your medical professional, trust your relatives, trust your first degree relatives that they will take you out of this problem. And now, fourth is cardiac rehabilitation. The fourth point that I bring to you is cardiac rehabilitation. Like I said, what happens is whenever a cardiac patient is discharged, he is controlling his diets, he's looking at his cholesterols, he's looking at his sugars, he's looking at his blood pressures. Okay. The aspect that creates a lot of confusion is exercise. They always tend to ask, and they have variable replies from doctors as well. Sir, when can we exercise? Can we go to gym? My ejection fraction has come down to 30%. My heart is functioning only 50% of its capacity. Can I do the gym? What does the data suggest? What does the research suggest? Research suggests exercise in each and every. Suppose your heart is working only 1/4 of of the capacity. Still, exercise is beneficial for you. You have to rehabilitate yourself. ये आपका खुद का शरीर है, आपको खुद एफर्ट लेना पड़ेगा. No amount of love, affection, or care from others can rehabilitate you. So, what exercise does? Now, I'll tell you the difference between a physical exercise or a mental stress. Physical exercise is also a stress on your body. You're subjecting your body to harsh conditions. You are exercising. So what happens whenever you exercise? आप जब भी exercise करते हैं, कसरत करते हैं, आपका blood pressure fall होता है. Blood pressure fall होता है, तो heart को थोड़ा कम काम करना पड़ता है. There is increase in myocardial oxygen demand. Heart को oxygen की जरूरत ज्यादा है, लेकिन आपके heart को उतना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है. And that is how your heart gets rehabilitated. It gets adapted to consume the oxygen. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 70 years old मेल मेरे पास आए कि सर मेरे हार्ट की कैपेसिटी 50% है नॉर्मल हार्ट के कंपैरिजन में, मेरा हार्ट सिर्फ आधा काम करता है. आई सजेस्ट हिम यू जस्ट वॉक, सर आप घर पे बस हॉल में 2 राउंड घूमिए. ही कम्स बैक टू मी आफ्टर मंथ, सर अब मैं 5 राउंड घूमने लगा. आफ्टर ए ईयर, सर अब मैं बाहर गार्डन में 500 meters घूमने लगा. आफ्टर 2 years, सर आई कैन वॉक 3 kilometers. दिस इज रिहैबिलिटेशन. इस रिहैबिलिटेशन का इफेक्ट आपके मेंटल स्ट्रेस पे पड़ता है. एक्सरसाइज से बड़ा स्ट्रेस बस्टर कुछ नहीं. द पीपल हु रेगुलरली एक्सरसाइज, इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ डे टू डे रूटीन एक्टिविटी. आप अगर सुबह एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको लगेगा आपकी लाइफ अधूरी है. एंड एक्सरसाइज कीप्स योर ब्रेन फोकस्ड. आप अगर वॉक कर रहे हैं, सिंपल वॉक, इट विल टेक ऑफ द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम यू. दैट इरिटेशन, दैट नैग व्हिच कैन बी वर्क रिलेटेड, ऐसा कोई वर्क है ही नहीं जिसमें स्ट्रेस ना हो. There is no job in the world which is stress free. This is the truth. No matter how much you love your job, there is always something which can bother you. A simple school going boy can have stress के exams आ रहे हैं.
2 months बाद मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे रिजल्ट्स क्या होंगे? दैट्स अ स्ट्रेस, दैट्स अ मेंटल स्ट्रेस. सो एक्सरसाइज से बेहतर देयर इज नो वे टू keep your brain focused. Exercise should be combined with what we call as respiratory exercises, pranayam जिसे हम कहते हैं. तो what this pranayam does, or what this respiratory, कोविड के समय आपने एक टॉय भी देखा होगा, बहुत फेमस हुआ था, that ball, you have to suck the air and you have to raise the ball. So, and we give this to post bypass patient as well for rehabilitation. So how lung and heart are interconnected? It's just कि आपने देखा होगा कुछ लोग जिनके हाथ नहीं रहते, they do entire work with their leg. किसी के पैर नहीं है, hands are sufficient, they'll do entire work with hands, they'll walk on their hands. ठीक है. Same is the condition of heart and lung, both are interdependent. Lung gives oxygen to blood, this oxygenated blood comes to heart, okay, and heart is a pump, it pumps this oxygenated blood to different organs of the body. Now heart is weak, so what I'll do, I'll make my lungs strong so that lung will infuse extra amount of oxygen to the blood and pump will be relaxed. Vice versa is also true. If your lungs are weak, you have to work on your heart. This is how these two interdependent organs take care of each other. Pranayam or respiratory exercises जितने लोग भी करते हैं, it works in 3 directions. Number 1, it increases your focus, takes out the negative energy of the brain. Number 2, it increases your vital capacity. Vital capacity उस एयर को बोलते हैं जो आप एक सांस में अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं. तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, your capacity of your lung increases. And third, and the most important, it acts as a relaxant to heart. Relaxant in the way कि आपका जो बेसल पल्स रेट है, अगर मेरे से आप पूछें कि सर कई बार जोक करते हैं, सिर्फ एक पल्स देख के, पल्स को हाथ लगा के बताइए कि ये पेशेंट हेल्दी है कि नहीं हेल्दी. हाउ आई एम गोइंग टू डू इट? आई एम जस्ट गोइंग टू डू कि मैं उनको एक चेयर पे बैठाऊंगा और उनका पल्स रेट देखूंगा. चेयर पे बैठाने के बाद उनका पल्स रेट 60 आया, आई विल आस्क हिम कि सर जाइए 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के मेरे पास वापस आइए. वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के गए, मेरे पास वापस आए. अब मैंने उनका पल्स रेट देखा, उनका पल्स रेट अब 110 था. तो 110 माइनस 60, पल्स रेट का डिफरेंस कितना है? 50. गुड रिजर्व. अब मैं दूसरे एक पेशेंट को लेता हूं, मैंने उन्हें वापस चेयर पे बैठाया, उनका पल्स रेट था 90. आई आस्क्ड हिम कि आप जाइए सीढ़ी चढ़ के आइए. वो जब वापस आए तो उनका पल्स रेट था 120. व्हाट इज द डिफरेंस? 30. द पेशेंट हु हैड अ गुड रेस्टिंग हार्ट रेट, slow heart at rest, that means he has a good exercise capacity, good reserve. This is how you have to rehabilitate. Now, after all this rehabilitation, अब मैं आपको मेंटल स्ट्रेस की तरफ लेके आता हूं, जो आज हमारा क्रक्स है डिस्कशन का. मेंटल स्ट्रेस, एक तो मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया, एमिगडाला एक सेंटर है. मेंटल स्ट्रेस क्या करता है? मेंटल स्ट्रेस आपको 3 वेज में परेशान करता है. ये आपका हार्ट रेट हमेशा इंक्रीज करके रखता है, स्लीप में भी आपके हार्ट को आराम नहीं करने देता है. मेंटल स्ट्रेस, जैसे अगर आप बैठे हैं, अचानक से आपने सांप देख लिया, तो आपको रियलाइज होता है ना, यू कैन फील दैट पाल्पिटेशन विद इन सेकंड्स. आपको लगेगा आपकी बॉडी में पूरा स्वेटिंग हो गया, फिर सांप चला गया, लेकिन आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगेगा कि एज इफ आपने बहुत बड़ा कोई वजन उठाया. दिस इज व्हाट मेंटल स्ट्रेस डज टू यू सबकॉन्शियसली. आपका हार्ट रेट हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा. आपके इमरजेंसी हॉर्मोन्स जो है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स हमेशा एक्सेस अमाउंट पे बॉडी पे सर्कुलेट करते रहेंगे. तो आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं उनमें प्रेशर्स बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा. एक नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में आपका ब्लड प्रेशर 20 से 30 mmHg बढ़ा रह सकता है. दिस इज व्हाट अ मेंटल स्ट्रेस और मेंटल फटीग डज टू यू. अब मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कार्डियक रिहैबिलिटेट हो जाते हैं, और उनका सवाल ये रहता है कि सर मेरे को वर्क प्लेस में बहुत स्ट्रेस है, मैं मतलब मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं काम करने के लिए जाता हूँ, मेरे बॉस से नहीं जम रही है, मेरे कलीग से नहीं जम रही है. सो वर्क, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपको स्ट्रेस ना रहे. देयर इज, आप कोई भी जॉब में हो वहां पे आपको स्ट्रेस रहेगा ही. सो इस स्ट्रेस से निकलने का तरीका भी आपको ढूंढना है. उस स्ट्रेस से निकलने के लिए सिर्फ अगर आप मुझसे एक फॉर्मूला पूछेंगे तो दैट इज डिसिप्लिन. एक वर्ड में आप मुझसे पूछेंगे तो डिसिप्लिन. वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से निकलना है, डिसिप्लिन. जस्ट डू योर जॉब. ठीक है. और मैं हिंदी में अक्सर लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक जीवन का तथ्य है. वर्क में आप जा रहे हो तो एक फंडा अपनाइए,
एक लाइन इन्वर्टेड कॉमा में, छोड़ो जाने दो। किसी ने आपसे बहस की, छोड़ो जाने दो। किसी ने आपको गुस्सा किया, छोड़ो जाने दो। लाइफ में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके खुद के हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। नो बडी इज वर्थ योर एंगर, नो बडी इज वर्थ योर स्ट्रेस। तो इस फंडे को अपना के अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस साइकोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। I'll request Mr. Neeraj to make this session a bit more interactive. आपके questions invited हैं, and I'll be happy to answer it. And accordingly, I'll expand my insights about stress. Thank you so much, Dr. Snell, for the insightful talk. And I can easily relate your the insight to my life as well. क्योंकि मैं जब CABG से बाहर आया तो now it's been 10 years. तो for the first 2.5 years or so I was too stressed, जैसा आपने शुरू शुरू में बताया मुझे, हम सब लोगों को आपने बताया कि किस तरीके से प्रेशर बिल्डअप होता है, क्या हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो मैं भी उसी फेज से निकला, और जैसे एक्सरसाइज की आपने इंपॉर्टेंस बताई, देन आई टुक ऑन वेरियस एक्टिविटीज़। लाइक मैं पहले भी वॉक करता था, बट दैट वाजंट सेटिस्फाइंग टू मी। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड साइकिलिंग। सो उसके बाद में मुझे जो बेनिफिट्स महसूस हुए, वो शायद मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा और पहले उसको शुरू कर पाता तो उसके बेनिफिट्स और ज़्यादा जल्दी मिलते। सो नाउ इट्स बीन 7 years, और जो मुझे ट्रेमेंडियस जो बेनिफिट्स मिले हैं एक्सरसाइज के और साइकिलिंग के, वो मैं सब रिलेट कर सकता हूँ जो जो फैक्ट्स आपने दिए। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो इंसाइट्स दिए वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, और हमें बिल्कुल इसी तरीके से अपनी लाइफ को मोल्ड करना है कि हम एक्सरसाइज को एक अपनी डेली एक्टिविटी में लाएं, और एटलीस्ट 30 मिनट्स का जो सेशन है वो पर डे हम अपने बॉडी को दें। चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे योगा हो, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं। और रिगार्डलेस ऑफ योर हार्ट कंडीशन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपका 1/4 हार्ट भी काम कर रहा है तो एक्सरसाइज विल बेनिफिटेड। तो आप किसी भी कंडीशन में हैं, एक्सरसाइज को इनकलकेट कीजिए अपनी डेली लाइफ के अंदर, और उसके बेनिफिट्स आपको 100% मिलेंगे। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा जो हमारे विजिटर्स ने और हमारे पेशेंट्स ने पूछे हैं, जिनके आंसर हमारे डॉक्टर साहब हमारे को देंगे। जैसे कि क्या कोरिलेशन है मेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ और स्ट्रेस के बीच में, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, और हाउ एग्जैक्टली डज स्ट्रेस अफेक्ट द हार्ट एट अ बायोलॉजिकल लेवल। सर देखिए, क्या है कि जो भी हार्ट की मेडिसिन हम लोग देते हैं, इस मेडिसिन का अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो ये हार्ट पे लोड कम करना चाहती है। ठीक, ये ब्लड प्रेशर को कम करना चाहती है ताकि हार्ट जो एक पंप है और हार्ट से जो नली निकल रही है उसको मैं डायलेट कर दूं, ताकि हार्ट को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। एक कमजोर हार्ट है, उसको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। तो ये जितने भी हमारे मैकेनिज्म है वहां पे आके फेल हो जाते हैं जब हम मेंटल स्ट्रेस को वहां पे ले आते हैं। मेंटल स्ट्रेस जो लोड को हम कम कर रहे हैं उस लोड को वापस बढ़ाएगा, जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस मेडिकल टर्म में बोलते हैं, उन नलियों को वापस ये सपोर्ट देगा और आपको वापस जो भी आप बेनिफिट पा रहे हैं उसको रोकेगा। सेकंड, आपने जो पूछा कि बायोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, कि जो मैंने आपको सांप का उदाहरण दिया था, ठीक है, कि आपने एक स्नेक देखा और आपके अंदर सडनली आपने देखा आपको स्वेटिंग हो गई, या जैसा हम सबके साथ होता है कि हम जिंदगी के किसी अहम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एग्जाम गोइंग बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, आपका कोई जॉब रिलेटेड कोई वर्डिक्ट आने वाला है। तो आप नोटिस करते होंगे कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपका कांस्टेंट दिमाग चल रहा है क्या होगा यार, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। और जैसे ही वो वर्डिक्ट आता है, मान लीजिए वो पॉजिटिव भी है, लेट अस होप कि वो वर्डिक्ट पॉजिटिव है, एग्जाम दिया था बच्चों ने, किसी ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप सेलेक्ट हो गए। जैसे ही आप रिलैक्स होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप 100 बोरी का वजन कहीं उठा के आए हैं, आपकी बॉडी में पेन होना चालू होता है, हेडेक होता है, आपको लगता है आप बहुत फटीग्ड हो गए। तो मेंटल स्ट्रेस बिना कुछ किए आपकी बॉडी को कितना ऊपर से नीचे तक थका देता है। मेंटल स्ट्रेस आपको सिर्फ इसको मतलब हम अगर मैं कुछ कंडीशंस बताऊं जो कॉमन कंडीशन है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और एक बोलते हैं हम टाइप ए पर्सनैलिटी। ये तीन सबसे कॉमन कंडीशन है। ऐसे कई डायग्नोसिस हो सकते हैं मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड, लेकिन जो आपका प्रश्न है उसमें ये तीन डायग्नोसिस है। डिप्रेशन यानी कि पेशेंट को कॉन्स्टेंटली ये लगता है कि मैं नॉर्मल आदमी नहीं, अब मैं वैसा नया रह गया, पहले जैसा ना रह गया।
अब मेरी लाइफ इंफीरियर, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता, अब मैं जॉब में नहीं जा सकता, अब जॉब में मेरी प्रोफाइल वैसी नहीं रही। इवन अगर मैं आपको डॉक्टर्स का उदाहरण दूं, डॉक्टर्स कोई अछूते नहीं है, उनको भी हार्ट अटैक होता है। बट डॉक्टर्स की मेंटालिटी ये है, मैं कई डॉक्टर्स के साथ बैठता हूँ, वो बोलते हैं कि सर किसी को बताइएगा मत कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, लोग मुझे उस नजर से या उस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह नहीं देखेंगे। दिस इज डिप्रेशन। एंजाइटी, हमेशा उल्टा सोचना, हमेशा एक घबराहट, डर मन में रखना कि मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ या मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं फ्लाइट पे बैठूंगा तो फ्लाइट में ही मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मेरे हार्ट की रिदम गड़बड़ हो सकती है। और तीसरा है जो टाइप ए पर्सनैलिटी, कि ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, खुद को हर किसी से कंपेयर करना। कंपैरिजन अगर आप पूछेंगे तो कंपैरिजन आपका खुद से होना चाहिए, कि मेरा जो कल था या मेरा जो कल आएगा वो मेरा आज से बेहतर है, एज सिंपल एज दैट। तो दीज आर द थिंग्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। हमारे जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं मानसिक तनाव में। उन हॉर्मोन्स का नाम है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। हमारे किडनी से हमारे कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन का नाम है एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, इनका रिलीज होना हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इनका रिलीज होना हमारे हार्ट में फाइब्रोसिस करता है, इनका रिलीज होना हमारे हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड बनाता है, इनका रिलीज होना हमारे शरीर में एक्स्ट्रा पानी बढ़ाता है। हम हमारा हार्ट एक पंप है, उस पंप को आराम देना है तो शरीर में पानी कम रखना होगा, लेकिन ये हार्मोन्स हमारे शरीर में पानी बढ़ाते हैं। सो ये बेसिक क्रक्स है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से स्ट्रेस हमारे लिए हानिकारक है। जी, आपने मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब अभी दे ही दिया, जो मैं पूछने वाला था कि एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल का क्या रोल है हॉर्मोन्स का। तो आपने इसका बड़े अच्छे से जवाब दे दिया। और इसके साथ में मेरा ऐसा सोचना है कि जब कार्डियक रिहेबिलिटेशन होता है तो जो मैंने फेस किया वो कि आपका फिजिकल रिहेबिलिटेशन तो सभी केयर गिवर्स करते हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेंटल रिहेबिलिटेशन शायद थोड़ा सा कम है। उसी की वजह से हम शायद स्ट्रेस में जाते हैं आफ्टर हमारी सर्जरी। तो मेरे ख्याल से हेल्थ सेक्टर में इस बात को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि इन एडिशन टू द फिजिकल रिहेबिलिटेशन, मेंटल रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो equally important for patients. So thank you for sharing your insights. So another question is, how do these changes influence blood pressure, heart rate, and especially the blood vessels? इसका सर तीन टुकड़े में तोड़ते हैं। ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एक्सर्शन यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज भी एक प्रकार का स्ट्रेस है, आप अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को कम कर रही है। ये है की डिफरेंस। मानसिक तनाव भी एक तनाव है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। फिजिकल तनाव यानी कि मैं अपने कहीं जिम में जा रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, अपने शरीर को एक सोफे से उठा के तकलीफ दे रहा हूँ, वो भी एक तनाव है, लेकिन वो तनाव एक अच्छा तनाव है, वो मेरे ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर को मानसिक तनाव बढ़ाता है। दूसरा हार्ट रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का मैंने आपको उदाहरण दिया था। एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट और हमारा स्लीपिंग हार्ट रेट, जब हम नींद में जाते हैं तो नींद एकमात्र ऐसा समय है जब हमारे सारे ऑर्गन्स आराम करते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट। हार्ट वो ऑर्गन है जब आप पैदा हुए हैं तब से काम करना चालू किया है, और वो तभी बंद होगा जब आपकी मृत्यु हो रही है। यानी कि इस ऑर्गन को 1 मिनट का आराम नहीं। तो इसको आराम अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो वो मिलता है नींद में। नींद में क्या होता है, अगर मेरा हार्ट रेट 80 चल रहा हो, मैं गहरी नींद में जाता हूं, तो वो हार्ट रेट अपने आप स्लो होकर 50 हो जाएगा। स्लीपिंग आदमी को अगर आप मॉनिटर पे कनेक्ट करके रखेंगे, जहां पे हमारी पल्स मॉनिटर हो रही है, उनका हार्ट रेट 40-50 तक चला जाता है, तो हार्ट को उस समय आराम मिलता है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है हार्ट की, वेरिएबिलिटी से मतलब रिजर्व, ये जो 40 का हार्ट रेट नींद में है, एक्सरसाइज में 120 का जा रहा है, ये वेरिएबिलिटी एक्चुअल मार्कर है आप कितने हेल्दी हो। मानसिक तनाव इस वेरिएबिलिटी को कम कर देता है। मेंटल स्ट्रेस, अब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और नींद में आपका हार्ट रेट 80 है, एक्सरसाइज में 110 गया, यानी कि वेरिएबिलिटी सिर्फ 30 है। तो हार्ट रेट जो है उसकी वेरिएबिलिटी खत्म करके मानसिक तनाव आपको एडवर्सली इफेक्ट करता है। तीसरा, आपने पूछा ब्लड वेसल्स के बारे में। तो हमारी हार्ट की जो नलियां हैं, जैसे कि जिन पे बाईपास का ग्राफ्ट लगता है, जिस पे स्टेंट लगता है, उसके परे छोटी छोटी नलियां हैं, और इन नलियों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो मानसिक तनाव, ये जो छोटी छोटी नलियां हैं, जो छोटी छोटी नलियां हैं, अगर जैसे मैं आपको नदियों का उदाहरण दूं, भगवान ने हमें जिस तरीके से बनाया है, गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी की छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं।
सोन नदी, जो गंगा को आगे जाके हम हुगली बोलते हैं, दामोदर, ये सब उनकी ब्रांचेस हैं, जो छोटे छोटे गांव खेड़ों में जाके ब्लड सप्लाई करती हैं या पानी सप्लाई करती हैं। ठीक, हमारे खून की नलियां भी उस तरीके से रहती है। तो ये जो छोटी छोटी शाखाएं, मानसिक तनाव इनमें सिकुड़न पैदा कर देता है, इन्हें स्पाज्म में डाल देता है। तो हमारी ऊपर वाली जो नली है वो ठीक दिख रही है, लेकिन ये जो हमारी छोटी छोटी नली है, इस पे तनाव करके, जो मैंने आपको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का टर्म यूज किया था, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जी। लोगों की पंपिंग को ये कम कर देता है। तो इस तीन तरीके से मानसिक तनाव आपको अफेक्ट कर सकता है। इसी में से एक सवाल, मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे मैंने अपनी हार्ट रेट को मेज़र किया, तो रेस्टिंग हार्ट रेट मेरी आती है करीब 55-58 के आसपास। और जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो आई टेक इट अप टू 140 और 145। सो हाउ डू यू सी दैट? दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट सर। ये आपकी अभी की नहीं, ये आपकी सालों की मेहनत है। ये एक महीने या 2 महीने में मिलने वाली अचीवमेंट नहीं है। ये जो है, ये आपकी सालों की मेहनत है। इस कन्वर्सेशन को मैं एक जो मैं आजकल हर अपने पेशेंट को वो करता हूँ, कि एडवाइस करता हूँ, ये जो आप मेजर कर रहे हैं, इसमें एक हाथ, जो मैं आपके हाथों में भी देखा, वो है स्मार्ट वॉच। आजकल जी। स्मार्ट वॉच की प्राइजेस जो है बहुत सस्ती हो गई, बहुत इजीली अवेलेबल चीज है। और मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, चाहे वो अफोर्डिंग रहे चाहे ना रहे, मैं उन्हें जरूर बताता हूँ कि ये भाई बहुत कम प्राइस में ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगी, ये पहनो। ये आपकी छोटी सी विक्ट्री। ये तो आपने वर्ल्ड कप दिखाया हमें कि सर मेरा जी। 55 का वो था और 145 तक मैं पहुंचता हूँ एक्सरसाइज में। मतलब इतना बड़ा रिजर्व। अब जो हमारे पेशेंट हैं, जिनको जो अभी अभी हार्ट अटैक से निकले हैं, जिनके हार्ट ने हिट ले लिया है, जिनके हार्ट की पंपिंग कम, उनका हार्ट रेट 100 का है, जब वो ग्रेजुअली रिहेबिलिटेट होते हैं और वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी इस स्मार्ट वॉच में देखते हैं कि आज मैं इतने स्टेप्स चला, अरे अरे मेरे स्लीपिंग हार्ट रेट जो है 80 से घट के 70 हो गया, ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है। तो जी। आजकल एक जो आप अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो खुद की विक्ट्री देखने के लिए, वो है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट जी। वॉच जो भी है हार्ट के पेशेंट्स, उसको अपनी लाइफ में जरूर लेके आए। वो आपको धीरे धीरे आपकी विक्ट्रीज हाईलाइट करवाएगी डे टू डे। जी। बस मैं इसमें यही मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो आई ट्राई टू नॉट एक्सर्ट टू मच कि वो 150 से ऊपर जाए। तो इज दैट ओके, या मैं ज़्यादा ओवर? इसका इसका एक फॉर्मूला है सर, इसका एक फॉर्मूला है, ये रफ फॉर्मूला है। जो हम जी। कार्डियो एज माइनस हार्ट रेट, जी। हार्ट रेट माइनस एज, तो उसमें क्या है कि टारगेट हार्ट रेट उम्र के हिसाब से फिक्स रहता है। ठीक है, कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि अगर ट्रेडमिल टेस्ट हम जब अपने पेशेंट्स का करते हैं, तो उस ट्रेडमिल टेस्ट में हम 180 माइनस एज कर देते हैं। मान लीजिए कोई 60 वर्ष के पुरुष हमारे पास आए, तो हम देखते हैं कि इनका हार्ट रेट अगर 120 से 130 तक जा रहा है, दैट इज ओके। एक रफ हम टारगेट सेट करके रखते हैं। और जो आपने एक बात कही कि मैं आई डोंट एक्सर्ट टू मच, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन का मैसेज है। जितना आपका शरीर क्षमता दे रहा है, उतनी ही कसरत कीजिए। ठीक है, जी। आप किसी जिम में किसी एंथुजियास्ट को देख के, किसी बॉडी बिल्डर को देख के, डोंट पुश योरसेल्फ इनफ। हर जी। इंडिविजुअल वेरी करता है, हर किसी की अपनी क्षमता है, और हर क्षमता दिन ब दिन बढ़ती ही है, ये तय बात है। तो आपने अगर डिसाइड किया कि आज मुझे जो भी, मान लीजिए एरोबिक एक्सरसाइज कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा, जंपिंग जैक्स इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बर्पीज इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्रिस क्रॉस जो बोलते हैं, बहुत जी। अच्छे एक्सरसाइजेज है हार्ट के लिए। तो अगर आपने डिसाइड किया कि आज मैं 40 के जंपिंग जैक के 3 सेट मारूंगा, कीप इट 3, वट एवर योर बॉडी इज परमिटिंग, डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ। अगर जिम, आपकी बॉडी हमेशा आपको सिग्नल देती है, एक्सरसाइज करने में आपको आंख के सामने अंधेरे जैसे फ्लैशेस आए, अगर आपको एक्सरसाइज करते समय थोड़ा चक्कर आया, दैट मीन्स कि आप ओवर पुश कर रहे हैं, जितना बॉडी परमिट करे, दैट्स इट। और साथ में हाइड्रेटेड भी रखें अपने आप को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी। तो ये हम बात कर रहे थे अभी, जो कोरिलेशन था मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ के बीच में। अब हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको हार्ट डिजीज नहीं है। तो what stress does to an otherwise healthy heart? So if someone without heart disease is under chronic stress, what could happen to their heart over time? क्रॉनिक स्ट्रेस क्या करता है सर, कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक पेशेंट की कहानी है ये, कि उन्होंने किसी जमाने में अपनी एंजियोग्राफी कराई थी 2013 में, जिसमें 50% ब्लॉक था। वो मेरे पास आए,
वो बोले कि सर घर में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई थी, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे थे भाई से, तो आजकल सीने में दर्द रहता है। मैंने बोला चलने फिरने में कोई दर्द नहीं है सर। मेरे घर में 2 मंजिल सीढ़ियां हैं, मैं उन 2 मंजिल सीढ़ियों को बिना रुके चढ़ जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? बोले हाँ। तो ब्रिस्क वॉकिंग जो बोलते हैं हम, तेजी से चलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी कुछ कहा सुनी होती है और मेरी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, तब सीने में दर्द होने लगता है। मैंने बोला कि मैं एक बार वापस आपकी एंजियोग्राफी करता हूँ, आज आपको 10 साल से ऊपर हो गए हैं, कहीं ये ब्लॉकेज बढ़ तो नहीं गया। एंजियोग्राफी की, ब्लॉकेज सेम था, 50 to 60%। अब देखिए मानसिक तनाव क्या कर रहा है। फिजिकल तनाव उनको तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन मानसिक तनाव, वो जो 50% का ब्लॉक है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना या क्रॉनिक कार्डिक सिंड्रोम, CCS, आजकल एक नया टर्म आया है। जी। कि मतलब इन पेशेंट्स को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं जो कि इसमें बढ़ जाते हैं, ड्यूरिंग एक्सर्शन बढ़ जाते हैं। फिजिकल एक्सर्शन उनको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन मेंटल एक्सर्शन प्रॉब्लम दे रहा है। इन पेशेंट के अगर डेटा निकालेंगे आप, तो साइंस ने ये डेटा प्रूव किया कि ये पेशेंट जिन्हें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, यानी कि जिन्हें नॉन सिग्निफिकेंट प्लाक है, 30% किसी को ब्लॉकेज है, 40% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है, उन केसेस में मानसिक तनाव इनको हार्ट अटैक लाने का खतरा दोगुना कर देती है, जी। कंपेयर टू वो पेशेंट जिन्हें मानसिक तनाव नहीं, दुगना। तो ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस वाले पेशेंट है, दूसरी कहानी ये है कि आप देखेंगे कि अगर घर में कोई एक मानसिक तनाव वाला पेशेंट है, उनके बच्चे जो है, वो भी उनके अंदर भी वैसी फीलिंग आने लगती है कि वो अगर अपने पिता को देख रहे हैं कि हाँ इन्हें ऐसा चिड़चिड़ाने की आदत है, फैमिली ऑल्सो गोज द सेम डायरेक्शन। मानसिक तनाव की ये खासियत है। जैसे कि डायबिटीज जो है वो एक जेनेटिकल बीमारी है, जेनेटिक्स में, जीन में चलती है। ठीक जी। उसी तरीके से जो हमारी मानसिक तनाव है, वो भी फैमिली में इनकलकेट होता है। किसी, कोई एक टाइप ए पर्सनैलिटी है, उसके घर में अगर आप किसी को केयरफुल इंटरव्यू करेंगे, आपको कोई दूसरा भी टाइप ए पर्सनैलिटी मिलेगा, उनका बच्चा, उनका भाई। किसी को अगर स्किजोफ्रेनिया है, अगर आप उनके घर में केयरफुल वो करेंगे, तो कोई ना कोई एक वहां पे पेशेंट और स्किजोफ्रेनिया का बच्चा। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनिबिशन। कि ये जो स्टेबल पेशेंट है, इनको अगर आप बोलेंगे कि आप साइकेट्रिस्ट से जाके काउंसलिंग कराइए, तो लोग ये समझते हैं कि हमें पागल बोल रहे हैं। मेंटल इलनेस का मतलब या मेंटल स्ट्रेस का मतलब लोगों के मन में एक ही धारणा है, हमें तो ये पागल घोषित कर रहे हैं। नहीं, जी। ये सारी भी, जैसे आपको बीपी है, आप बीपी की दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जैसे आपको शुगर है, शुगर की दवाई खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। वैसे ही मानसिक तनाव के भी अलग अलग कैटेगरी होती है और अलग अलग दवाई होती है, आप वो लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ इसका, वैसे आपने काफ़ी हद तक उत्तर दे ही दिया है। जो एंग्जाइटी है, या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको हम कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्या उससे भी कभी हार्ट अटैक का खतरा है एक सिंगल एपिसोड से, या ये कंटिन्यू चलेगी तो ही हार्ट डिजीज हो सकती है? ऐसा कुछ कोरिलेशन इनके बीच में? दोनों केसेस में कोरिलेशन है सर। कई बार क्या होता है कि हमारे हार्ट में अगर मान लीजिए बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज है, हमारे हार्ट की कुछ खून सप्लाई करने वाली नलियों में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, तो हार्ट अटैक की एक डायरनल वेरिएशन बोलते हैं। यूजुअली हार्ट अटैक सुबह के टाइम जाता आता है। पेशेंट सुबह 4 बजे सडनली वॉशरूम जाने के लिए उठा, और वॉशरूम जाते जाते उनको हार्ट अटैक हो गया। ये ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। ये हमारे हार्मोनल वेरिएशन की वजह से होता है कि हम नींद में, हमारा हार्ट आराम में था, हम नींद से उठे, अचानक से हार्ट को स्ट्रेस आया, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की परत है, ये टूट के आगे जाके नलियों को ब्लॉक कर दी या चोक कर दी। मानसिक तनाव ठीक वही काम करता है सर, जो ये मैंने आपको उदाहरण दिया। किसी को अचानक से कोई मानसिक तनाव आया और उनको छोटे मोटे ब्लॉकेजेस थे, तो इसे हम कहते हैं वल्नरेबल प्लाक, मेडिकल टर्म में। कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ प्लाक, ये डिसरप्ट हो सकता है, ये टूट जी। के जाके आगे की नली को चोक कर सकता है। तो ये जो है एक्यूट स्टेज में भी आपको हार्म कर सकता है। और किसी को अगर क्रॉनिक मानसिक तनाव है, मेंटल स्ट्रेस है, क्रॉनिक लंबे समय से चला आ रहा है, तो जो मैंने बताया था छोटी छोटी नलियां, उसमें स्पाज्म हो के, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस इंड्यूस्ड मायोकार्डियल इश्कीमिया, MSI-MI। जी। तो ये मेंटल स्ट्रेस इंड्यूस्ड मायोकार्डियल इश्कीमिया जो है, ये बहुत ही छोटी छोटी नलियों को डिसरप्ट करके हमारे हार्ट की पंपिंग को अफेक्ट कर सकता है, हमारे हार्ट की पंपिंग को कम कर सकता है। तो इसके कोई ऐसे वार्निंग साइंस हैं कि स्ट्रेस इज हार्मिंग हार्ट हेल्थ इन पीपल हु कंसीडर देमसेल्व्स हेल्दी? यस। क्या हमारी बॉडी इस तरह के क्या सिम्टम्स दे सकती है?
बॉडी में सबसे देखिए, सीने में दर्द जो है ये बच्चे बच्चे को मालूम है कि अगर हुआ है तो आपको जाके एक ईसीजी करानी है। जो वार्निंग सिम्टम्स हम इग्नोर करते हैं वो ये है इजी फटेगेबिलिटी। ये जो मानसिक तनाव है जिसमें मैंने बताया आपका बेसल हार्ट रेट पहले 80 रहता था, आप आराम में थे तो 80 था, अब वो बढ़ के 100 हो गया है। तो आप थोड़ा सा एक मंजिल सीढ़ी चढ़ेंगे और आपकी सांस फूलने लगेगी। पहले आप 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ लेते थे। आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं उस ऑफिस में आप पहले लिफ्ट का यूज नहीं करते थे, अब आपको लिफ्ट का यूज करना पड़ रहा है। ऑल दीज आर अलार्मिंग साइंस जो आपका हार्ट आपको बता रहा है कि मैं थक रहा हूँ। आप थोड़ा सा भी मेरे ऊपर स्ट्रेस बढ़ा रहे हो और मैं थक रहा हूँ। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग होना, इसके अलावा आपकी स्लीप कॉन्स्टेंटली कम होते जाना। आप रात को सोते हैं 2 घंटे बाद उठ के आपको ऐसा लगता है आपकी सांस फूल रही है, आपका दम घुट रहा है, आप बिस्तर पे बैठे रहते हैं। दीज आर द अर्ली साइंस कि आपका हार्ट फेल हो रहा है, आपका हार्ट गिव अप कर रहा है। तो जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जैसे कि पुअर डाइट हो गई, स्मोकिंग और अल्कोहल हो गया, ये किस तरीके से स्ट्रेस के साथ मिलकर के इसको बढ़ाते हैं? इनका क्या ये रोल है स्ट्रेस का? सिनर्जिस्टिक रोल है सर। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई स्मोकर है, अगर उसे आप तनाव देंगे तो सबसे पहले वो सिगरेट के लिए भागेगा। कोई अल्कोहलिक है, उसे बस बहाना चाहिए कि मैं जाके तुरंत अल्कोहल लूंगा। ओबेसिटी, स्ट्रेस ओबेसिटी इनवाइट करता है। बिंज ईटिंग, अगर आप देखेंगे मुझसे अगर मेरे अनुभव में मेरे पास अगर कोई ओबीस फीमेल है, घरेलू काम करने वाली फीमेल जो कि बहुत ज्यादा वजन गेन कर रही है, मैं उनसे उनके मानसिक हेल्थ के बारे में जरूर जानना चाहता हूँ। क्योंकि बिंज ईटिंग डिप्रेशन का सबसे पहला साइन है, बिंज ईटिंग। अब आपको लगता है कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खाना चालू करो। अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में एक सिगरेट जब आप एक धूम्रपान करते हैं, एक सिगरेट आप पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 2 से 20 से 30 mmHg बढ़ जाता है। मानसिक तनाव के बैकग्राउंड में जब आप सिगरेट पियेंगे तब आपका ब्लड प्रेशर 50 mmHg बढ़ जाता है। डबल द इफेक्ट। डबल इफेक्ट। तो एक सिगरेट स्मोकर को अगर आप नॉन स्मोकर से कंपेयर करेंगे तो एक स्मोकर में हार्ट अटैक आने के चांसेस 13 गुना ज्यादा रहते हैं, 13 टाइम्स मोर। मानसिक तनाव को उस पर ऐड कीजिए तो ये 15 टाइम्स से भी ऊपर चला जाता है। तो जो टेक्निक्स हैं हमारी इनको मैनेज करने के लिए, एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन हो गई, ब्रीदिंग थेरेपी हो गई, क्या इनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग है? यस, इन सब की साइंटिफिक बैकिंग है सर। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक वर्ड है डिसिप्लिन, जो इन सारी चीजों को समराइज कर देता है। आपका दिनचर्या, आपको किसी ने बोल दिया कि अरे यार ये तो पागल है यार, कुछ भी बोलता रहता है। वर्क में कई बार क्या है कि आप वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के लिए आप अपने कलीग से बात करना चाहते हैं, लेकिन कलीग आपको टाइम नहीं देता, अरे यार इसको तो ऐसे ही रहता है, हमेशा रोता रहता है। ठीक है। तो इन सब से पार पाने का एक ही तरीका है, वो है डिसिप्लिन। आपका रूटीन, आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, 6 से 8 घंटे आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खुद को एंगेज रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है। आप अपने हॉबीज को अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करते हैं। कोई पेंटर है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई स्विमिंग करना चाहता है, तरह तरह के ऑप्शन है। आप अपने जॉब से स्विच ऑफ कब करना है, आप इसके भी आजकल क्या है कि कॉर्पोरेट ऑफिसेस में वर्क हेल्थ के लिए तरह तरह के उनको वो बताए जाते हैं कि अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आपके बहुत फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं घर पे भी और वर्क प्लेस में भी, दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक ऑफ। आपको अपना ऑफ टाइम भी निकालना है। तो ये सारे बहुत सारे तरीके हैं जिनके साइंटिफिक प्रूवन वेज हैं। साइकेट्रिक काउंसलिंग, जो कि मैं काफी परेशान रहता हूँ पेशेंट से, अगर मैं किसी को भी साइकेट्रिस्ट के पास भेजूं तो पेशेंट का एक नेचुरल एक इनर्शिया रहता है कि नहीं सर मैं पागल नहीं हूँ। तो उन्हें ये समझाना पड़ता है कि देखिए, जैसे आप बीपी के दवाई के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, शुगर की दवाई के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आप अपने मानसिक तनाव के लिए साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जाएंगे? एंड दे आर वेरी गुड इन फाइंडिंग आउट द ट्रिगर, जो शायद एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कर पाएगा, कि आखिर क्या ट्रिगर है जिसने आपकी पर्सनैलिटी चेंज की और उस ट्रिगर को कैसे हटाना है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स, कि आप अपने अंदर से मानसिक तनाव को हटाते हैं तो आपके जो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वो 50% से भी कम हो जाते हैं। या पहले के जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो मानसिक तनाव की वजह से बार बार हार्ट फेल होकर जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो हॉस्पिटलाइजेशन सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाते हैं। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है जो अपनी करंट कंडीशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं, आई हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यू टू नेसल ब्लॉकेज। I have ASD in my heart, which is leaking.
It's safe to undergo nasal surgery before, as my right eye is swelling in the morning every day. I get tired a lot and a lot of brain fogginess is there. So please suggest me. अ, इनका इन्होंने मेंशन किया कि इनके एएसडी में लीकिंग है। ठीक जी। है, तो इनको नेजल सर्जरी में जाने से पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा, अपना इकोकार्डियोग्राफी कराना होगा। वेयर एक कार्डियोलॉजिस्ट इनकी इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट को देख के बताएगा कि ये जो एएसडी है इनके लिए बॉदरसम है कि नहीं। ओके, ये जो फॉगीनेस बोल रहे हैं, मेंटल फॉगीनेस, जो फटीगेबिलिटी बोल रहे हैं, अगर एएसडी के डिवाइस में लीकिंग है या हमारे हार्ट का कोई प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो हो सकता है, जो कि जिसका सो जस्ट माय टू लाइन एडवाइस टू हिम विल बी, फर्स्ट गेट अ इकोकार्डियोग्राफी डन, meet your cardiologist, inform him that you want to undergo a nasal surgery. If finds you absolutely fit, he'll write it in on the major issue. जी। Uh, और Hello, doctor. जी Uh, बताइए। can I just talk to you for a minute, please? Yeah, sure. Yeah, it's myself. It is my case itself. So the just you talked about the case, no, it is myself. I have only described that Okay. situation. So this nasal injury happened during 2020 while traveling in bus. Someone's hand mistakenly hit my nose. That is when I developed the nasal injury. Very soon, just a month later, the COVID also broke out, and I had slight infection. From then onwards, have a breathing difficulty. Always last 5 years, 5 years, one nose will be blocked, especially right nose. Either only through one nose only I'll be breathing whole night. So I'll wake up with extreme level of tiredness. I already undergone spine operation 8 years before because of that is also injury. And unexpectedly 1.5 months 2 months before, so since I couldn't prepare the food on time and have food, I had acid reflux, because of which it burned my heart muscles. So I just wanted to double check, just because the pain was so much severe for 5 6 days. I know I have skipped food on I because I stay alone, I couldn't prepare food on time. It caused acid reflux, I know it, but still 10 years before, when I was traveling for in a bus for to give an interview, I had severe chest pain once 2013. So I just wanted to, and last year also when I went to home, because here I'll not have proper food on time food, because I don't like to eat in PGs properly, and after moving to apartment, it's difficult for me to cook prepare food on time and have that is also difficult. So there is a not proper regular. I don't maintain proper eating habits. When I go home, obviously since my mother prepares, I'll have food 3 times. That caused me, though I don't have heavy food, though it is in moderation level itself. I after having dinner, my chest pain increased for 5 minutes. I had severe chest pain. Though I don't overload myself or don't overeat, but still, because there I had regular 3 times meals, so I had chest pain in the night. So considering all that, though I skipped food because I couldn't prepare on time, I just underwent all CAT study, echocardiogram, everything. Spurs Hospital doctor also said that there's a leakage, but as of now, there is nothing emergency. You need to undergo every year echocardiogram. If in the future, if it leakage becomes more, probably you have to undergo operation. Then I double checked same thing with the Sakra Hospital. So they also, after doing the CAT study, as of now, they suggested that ejection factor is 60%. Everything seems to be normal, but there is that is what I informed, that there is an injury. I'm having a lot of tiredness because of the nasal blockage and all. It is not inside the home, because since I prepare myself and I don't come in contact with other people, though it is manageable. But externally, when I have to go and work in IT, or if I eat outside a crowded place, have to use outside external washrooms, then the blockage becomes more, and I'll wake up with more swelling in the morning. That swelling sometimes, now though it is asked 2 3 months, because I stay inside my home itself, it, whatever I prepare myself, that will little manageable. But so uh, that is the reason, sorry. So uh, that is manageable, but when I all these are putting my life career also at risk, I'm very much scared, because now for waking up with extreme level of tiredness. I'm getting scared to pursue my career also in IT software field. It's very difficult because my mind has to be very active, alert, because what I noticed was post COVID, I'm not able to like extend. I mean, earlier, though I haven't used to sleep properly, even if I slept 4 5 hours also, I would go and work actively, though I had spine operation, muscle spasms, cramps, but still my brain used to be active. But post COVID and nasal injury,
Sometimes if I don't sleep properly 2 3 days, even if I have a meeting within next 5 10 minutes, within a fraction of second, without my knowledge, I'll go for my body totally. My mind gets disconnected for 20 30 minutes. I mean, I'll be in sleep mode somewhat. So it struggles to stay active. So I'm I'll also a bit interrupt worried. you. I'll interrupt you. See, you have told me the entire symptoms or symptomatology in very detailed way possible. And if you're hearing our talk, I'll suggest you, it's not your nasal injury. First of all, you need a counseling. Okay, so you go to a good psychiatrist. Take care. You are really fatigued, not because of your nasal injury or spinal injury or your ASD closure. So, okay, you have told me that your cardiologist at two different hospitals have told that your heart is functioning absolutely well. You have told me your ejection fraction is 60%. So all you need is to consult a psychiatrist. Okay, there is some kind of trigger or mental stress that is troubling you. Just take the help of a psychiatrist at your city and you will be fine. Trust me. Just you have to do But that doctor, much, there nothing is more. a leakage happening. No, it's kind of hole. They said I don't. Your cardiologist have you have shown it in two hospitals and both of them have ruled out that Yeah, this leakage they is not bothering you. leakage is leakage is there, but emergency operation is not required. But they asked me to, based upon my Just follow up. situation, Yes, just get a echo done once a year. That's it. Nothing more. Nothing more. I need not undergo surgery anything immediately for Yeah. that. No, That's no, a you don't. congenital. That is what they said. Congenital. Yes. So don't worry. You just consult a psychiatrist at your city. Okay. That's it. Mm-hmm. You have to do that much. Nothing more. Okay. You'll be fine. You'll be fine At with a couple least, of pills. Nothing more. okay. At least, can I go ahead and do this nasal surgery, doctor, first? First you consult a psychiatrist and then you can go to ENT. Okay. Okay. This is how Okay. you Okay. should approach. Okay. Okay. Thanks. Thanks. If anyone else also having questions, you can directly ask to Dr. Goswami. Otherwise, we are approaching our session's limit. So, Hello, sir. Good morning. Good evening. I have Good one evening. query. Yeah. Okay, if there is an excess of, I have a myocardial infarction for past 1 year in November 2024, and now I am having medicine blood thinner, EcoSprin. But it is Mhm. observed that my skin texture has been something purely like grown old. Is there is it is due to the side effect or it's a normal course of that? मतलब जब पहले 1 साल No, पहले no. जो Ecosprin at times causes blackening of the skin, reddish patches on the skin, okay causes some skin issues. It's a rare complication, you can say, or adverse effect. Complication is not the right word. It's the adverse effect. You can consult a cardiologist there. He can switch you from Ecosprin to clopidogrel. That is another blood okay thinner. Okay, he can switch you from that. You have to keep your skin hydrated. Oil it well. okay Use good moisturizers on your skin. Okay, okay use right good oil on your skin. Okay, avoid right right unnecessary trauma on your skin. Okay, and okay you'll be fine. Don't worry. It's not a permanent अच्छा thing. It heals itself. अच्छा सर लास्ट एक मेरा क्वेरी कि अगर हम इसको ये जो हमारा 2D इको है अगर इसको हम हाँ हर 2 महीने बाद इसको करवाएं तो इसमें कोई वो तो नहीं है इसका ये नुकसान तो नहीं है इसका नहीं कोई सर, हर 2 महीने में करवाने की आपको जरूरत नहीं है. हाँ Ideally, if somebody has a history of myocardial infarction or heart attack, we do it every 6 months. If doctor ओके feels necessary, if doctor finds something, some symptoms increasing in you, आपके ECG में कुछ fresh problems दिखे हैं, तब वो आपको necessarily echocardiography advise करेंगे. Or else राइट आपको regularly हर 2 महीने में कराने की जरूरत नहीं. Once in 6 months is enough. ठीक है डॉक्टर थैंक यू वेरी मच Okay. thank you, Jay, for your query. Anyone else having any questions? Okay. So, as we close today's session, let me quickly share the key takeaways. Stress at work and in daily life is not just an emotional burden, but it can seriously harm the heart. So, recognizing stress, managing it early, and seeking timely medical help can make all the difference. So, सबको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है. आपको ट्रिगर्स को पहचानना है कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है. उसका तुरंत आपको समाधान करना है. अपने साइकोलॉजिस्ट से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करें और हमारे दिल के डाउट्स सेशन को रेगुलरली
आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनमें हम एक कम्युनिटी की तरह, एक फैमिली की तरह आपस में क्लोज ग्रुप में डिस्कस करते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बात इसके बाहर जाएगी। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फेलो मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ HHIF, I sincerely thank Dr. Snehal Goswami for his valuable time and guidance, and all of you for being with us today. Thank you very much, Dr. Snehal. Thank you. Thank you, Mr. Neeraj. Thank you. And for me personally, sessions like this reaffirm the importance of patient communities. So we all face doubts and fears. जैसा मैंने पहले कहा, हम सबके दिमाग में कुछ शंकाएं होती है, सवाल होते हैं। लेकिन इस तरह के कन्वर्सेशन जो हम लोग यहाँ करते हैं इन सेशंस में, we find answers, support and strength together. So please stay connected with HHIF Heart Health India Foundation for our upcoming sessions, and share today's learnings with your families. And remember, no question is ever too small when it comes to heart health. So you can follow the link in the chat to sign the petition now. And thank you, and see you in our next session very soon. Thank you very much. Thank you, Dr. Snail. Thank you very much. Thank you, Mr. Neeraj. It was our pleasure. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir.